Good evening, everyone. First of all, I wish everyone happy Lohri. May this Lohri fire burn away all the sadness you have, the misconception you have, doubts you have, negligence towards safety rules and regulations. May the bonfire of Lohri will bring new thoughts, new mindsets, new determination to make India a safe country to live in, free of electrical and fire accidents. Today we are going to do a very different kind of session, that is the open discussion number 2 on Electricity Act 2003 for power engineers with respected Raj sir. I still remember the days of long power cut, sleepless nights in the hot summer, waiting for restoration of power cut on Sunday evening especially to watch movie on Doordarshan, waiting for restoration of power to watch Chitrahar Ramayan Mahabharat on Doordarshan. Electricity boards were mentioning their total losses in tune of 40%, 50%, 60% even. There was long wait to get new connection. Also, there was no renewable power generation, there was no open access, there was no regulatory commission, there was no CRC, there was no forum of regulator, there was no APTEL. There was no concept of TOD and net metering that we have right now. There was no power exchange. We could get all these things because of Electricity Act 2003. I am very lucky. I am with respected honorable, a very good human being who is always ready to give back to the society. He is basically BLC, Beyond Legends Characteristics on the Earth. Respected Raj Singh Ranjan sir. He is basically working as a managing partner for Trans India Law Associates and has helped various power companies for land due diligence, and their company has done land acquisition for more than 10,000 plus acres of lands. As a corporate lawyer, he has represented center as well as state power utility before APTEL and CRC. He is a founder of Dr. Gopal Energy Foundations, and he is being invited across the world for training and workshops in energy laws and policies. He has compiled all the legal opinion rendered to power sector in last 2 decades in his latest book, Energy Laws in India, published under Dr. Gopal Energy Foundation's team. We can also learn rules and regulations by looking at his YouTube channel, the post he posts without fail. He's very passionate and I'm very lucky he's with me. Welcome, sir. Welcome to my show of open discussion number 2 at Igniting Power Engineers. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you, Rajesh ji. It is wonderful and आपके subscribers और आपके team को देख के बहुत अच्छा लग रहा है and look forward to this wonderful discussion, sir. Back to you. Okay. I would like to start with a very common question related to Electricity Act. So far, power system is concerned, Electricity Act 2003 is always considered to be a milestone, revolutions, or game changer for power sector in India. What do you say about it? So, give your views on that statement that I have already made. I want to know something about the statement I have given from your end. सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इंपॉर्टेंस अगर समझना है तो आपको 6 चीजें देखना पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने इंडिया में 6 रेवोल्यूशंस लाए हैं एक साथ, ठीक है। और वो 6 रेवोल्यूशंस क्या है वो हम देख लेते हैं सर। नंबर 1 है, पहले हम 1992 के पहले समझते थे इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेलफेयर। वी डिड नॉट कंसिडर इट एज कमोडिटी नॉर एज सर्विस, वेलफेयर समझते थे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने चेंज कर दिया, उसमें बोला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ वेलफेयर, इट इज अ कमोडिटी एंड सर्विस। एंड उसको और फर्दर डिफाइन कर दिया, बोला कि जो पावर सेक्टर है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जनरेशन इज नाइदर सर्विस नॉर कमोडिटी, इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैक्ट्री है वो।
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आर इन सर्विस बिजनेस। सर्विस मतलब ये ट्रक है जिसको अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी ओनरशिप नहीं रहेगी सामान की। भाई आपका दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफर हुआ है, आपने ट्रक वाले को सामान दिया, बोला कि भैया ट्रांसपोर्ट कर देना, वो बोलेगा ठीक है मेरे को एक सर्विस चार्ज टोल जो भी देना है आप में ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान उस ट्रक वाले का हो गया, सामान आपका ही है। तो सर्विस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये ट्रेडिंग ये है कमोडिटी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉन्स खरीदते हैं सस्ते में और महंगे में बेचते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने करा, इट चेंज्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वेलफेयर टू अ कमोडिटी एंड सर्विस। सेकेंड थिंग जो करा वो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। अभी ये नहीं पता था पावर सेक्टर में 2003 के पहले कि किसको क्या काम करना है, रेगुलेटर को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, पावर सेक्टर को क्या करना है। सो डिवीजन ऑफ वर्क बिल्कुल क्लियर कर दिया। लॉ बनाने का काम रेगुलेटरी कमीशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का है। ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बोलता हूं तो जेईआरसी, एससीआरसी, सीईआरसी टुगेदर। ओके। पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट में बोलता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, स्टैंडर्ड्स बनाने का काम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है। डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर कर दिया, हम सबको बिल्कुल क्लियर है कि स्टैंडर्ड्स बनाना है तो यहां जाना है, लॉ बनवाना है तो यहां जाना है, और अपने पॉलिसी बनवाना है तो यहां जाना है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने दूसरा काम किया, सब लिख दिया इसमें। थर्ड, रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म का रोड मैप आर्टिकुलेट कर दिया। ओके। चैप्टर 13 में ये लिख दिया कि भाई देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ पावर रिफॉर्म्स। फर्स्ट स्टेप इज अनबंडलिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइफर्केशन, फर्स्ट स्टेप, एंड वो स्टेप बाय स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज कॉर्पोरेटाइजेशन, मेक देम अ कंपनी। सो सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया कि कॉर्पोरेटाइजेशन करना है। थर्ड स्टेप, आप सब सर ये सब एवरीबडी कैन स्पीक और दे कैन नॉट स्पीक, लाइक इट इज ओपन फॉर देम। Sir, they Yeah. can raise their hand if there is some अच्छा, question. ऑल राइट। सो Yes. इन बिटवीन आप लोग चैट बॉक्स में भी कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो डॉक्टर राजेश जी भी उसको देख रहे हैं, एंड मे बी मैं देख पाऊंगा तो मैं भी देख लूंगा। एंड इफ यू इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ऑल राइट। थर्ड स्टेप ऑफ पावर रिफॉर्म्स इज प्राइवेटाइजेशन। अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना शेयर मार्केट में, आप शेयर्स देते हो, जैसे सतलुज जल विद्युत निगम, एनएचपीसी, एनटीपीसी के शेयर्स आप खरीद सकते हो शेयर मार्केट से। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो 3 स्टेप का पावर रिफॉर्म्स क्लियर कर दिया, आर्टिकुलेट कर दिया। थर्ड, फोर्थ, उसने रेगुलेटरी इकोसिस्टम बना दिया इंडिया में। रेगुलेटरी इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ रेगुलेटर्स नहीं, रेगुलेटरी इकोसिस्टम में 2 चीजें आती है, रेगुलेटर्स एंड सेमी रेगुलेटर्स। सो रेगुलेटर्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि रेगुलेटर्स क्या है, सेमी रेगुलेटर्स क्या है। 3 सेमी रेगुलेटर्स बना के डाल दिए इंडिया में। एक है स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर जो लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लोड डिस्पैच, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। थर्ड इज ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर जो सीटीयू एंड एसटीयू है। तो रेगुलेटर, रेगुलेटरी इकोसिस्टम जब मैं बोलता हूं तो 2 चीजें, रेगुलेटर्स सीईआरसी, एसईआरसी, जेईआरसी, सेमी रेगुलेटर्स मतलब स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर एंड ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर, सेमी रेगुलेटर। तो चौथा काम जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने करा कि रेगुलेटरी इकोसिस्टम इंडिया का बना दिया, आर्टिकुलेट कर दिया। पांचवा काम क्या करा, पूरे पावर सेक्टर को इंडिया के, जिसको बोलते हैं वन नेशन वन लॉ, वन ग्रिड, वन प्राइस, वन 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 सब कुछ, उसको यूनिफाइड पावर सेक्टर बना दिया। अब यूनिफाइड पावर सेक्टर कैसे बना? यूनिफाइड पावर सेक्टर बनाना बहुत डिफिकल्ट था इंडिया में, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसीज बनाई विद इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ओके। सो एक कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ये बनाई कि फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, सारे रेगुलेटर्स आपस में डिस्प्यूट ना हो, उनके आपस में जब भी कुछ है बातचीत करें तो उसको बोलते हैं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स। पूरा इंडिया बन हो गया। दूसरा, पूरे इंडिया के लिए पावर एक्सचेंजेस अलाउ कर दी, जिसको भी खरीदना है जिसको भी बेचना है आप तो, कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। सेकंड, थर्ड, भाई आपस में डिस्प्यूट ना हो, सारे चाहे जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग और सप्लाई सब आपस में मिल बैठ के बात कर लें। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, रीजनल पावर कमेटी बना देते हैं, आरपीसी।
बैठो, आप डिस्कस करो, जो भी आपका सेटलमेंट है कर लो वहीं रीजन लेवल पे। तो 5 रीजन्स के 5 रीजनल पावर कमेटी। किसी को भी अगर कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया है तो डॉक्टर राजेश जी को पता है, आप क्वेश्चन पूछ लेना। देयर इज नो सिली क्वेश्चन, देयर इज नो सिली आंसर, वी आर ऑल लर्निंग, जैसे सर बोलते हैं लर्नर। उसके उसके बाद अब ये था कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है, रेगुलेटर की फोरम ऑफ रेगुलेटर्स बना दिया, रेगुलेटर्स के कोऑर्डिनेशन के लिए रीजनल पावर कमेटी बना दी कि आपस में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई आपस में कोऑर्डिनेट करें। लेकिन अगर कुछ कोऑर्डिनेशन हमें रेगुलेटर के साथ करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग एज अ पावर सेक्टर? आंसर इज यस। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी बनाई है, सेंट्रल लेवल पे है, उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कोऑर्डिनेशन फोरम। तो सीईआरसी के चेयरपर्सन एंड मेंबर एंड ऑल एंटिटीज हु हैव इंटरस्टेट लाइसेंस, दे आर मेंबर्स। वो बैठ के जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ओपन फोरम। स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कोऑर्डिनेशन फोरम, सो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इज द चेयरपर्सन, मेंबर्स मेंबर है उसके, और बाकी जितने भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग जो स्टेट के हैं वो उसमें मेंबर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, सो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है सर, ये पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया इसने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने, कि कलेक्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेड होता है जो उस डिस्ट्रिक्ट का होता है, और जितने भी जो स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रही, वो देखने के लिए। सो नेक्स्ट लेवल था यूनिफिकेशन ऑफ द इंडियन पावर सेक्टर, वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस, वन एवरीथिंग, वन। ऑल राइट। सिक्स एंड फाइनल जो रिफॉर्म था मेरे हिसाब से, वो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डी लाइसेंस्ड, यस, प्लस रूरल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डी लाइसेंस्ड। दो चीजें डी लाइसेंस कर दी। एक दो जगह प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि रूरल एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज नॉट वाइबल, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो नहीं रही थी इंडिया में, तो उन्होंने बोला दोनों चीज को डी लाइसेंस कर दो। तो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, दोनों को डी लाइसेंस कर दी। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में क्या किया इंडिया के लिए अगर किसी को देखना है, तो अगर ये 6 चीजें किसी ने समझ ली तो उसको क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने ये 6 रेवोल्यूशंस लाए हैं इंडिया में सर। तो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, बैक टू यू yes, सर। yes, mind blowing, sir, mind blowing. I would like to move forward. There are 18 parts and 185 sections in My Electricity Act 2003. And out of that, there is one section that is talked about everywhere, that is 135. That is under Part 4 of Offences and Penalty, theft of electricity. Kindly throw some light on that. What that theft of electricity is? सर जैसा कि आपने बोला था कि 2000 में लोड शेडिंग दिल्ली में होती थी सर, हाँ, मैं दिल्ली मतलब क्या 4 से घंटे, इट वाज द नेशनल कैपिटल। हम्म, तो आपने तो देखा ही हुआ है सर। सो अब one of the major reasons for this load shedding and unavailability of power was aggregate technical and commercial losses। और aggregate and technical commercial losses में भी जो major portion कहते हैं, वो कहते हैं कि theft of electricity was a major component of aggregate technical and commercial losses। गवर्नमेंट में को उसमें एक्शन लेना था, लेकिन ये एक्शन से ज्यादा क्या जरूरी था, कुछ और ज्यादा जरूरी था। रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस ऑफ डिस्कॉम वाज मोर इंपॉर्टेंट। अब रेवेन्यू और फाइनेंसेस ऑफ डिस्कॉम कैसे इंप्रूव करें, वो टारगेट करके उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, अगर आपको थेफ्ट समझना है तो आपको 3 वर्ड समझने पड़ेंगे। अगर 3 वर्ड्स आप समझ जाते हैं तो आप पूरा थेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। वन इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया, एप्लीकेशन दी, उसने डिस्कॉम ने अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा दिया, इट इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके घर में अगर मीटर लगा, यू आर ऑथराइज्ड, यू आर डूइंग ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड लेवल है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर आता है। सो आपके घर में कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास कनेक्शन है, आपने बोला भैया तार मेरे पास भी, मीटर उसका चल रहा है। आप एक चीज देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने बस मीटर नहीं लगाया, आपने कहा पड़ोसी वाले को बोला काम करो मेरे को भी तार दे दो, मेरे घर में नहीं इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन लिया, वहां पे फैक्ट्री का शेड डाला, वही एग्रीकल्चर का कनेक्शन फैक्ट्री के शेड में चल रहा है। अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑथराइज क्या था, आपको था एग्रीकल्चर में करिए, आपने आपका घर बना हुआ है 4 मंजिल का,
आप अमीर हैं बहुत ज्यादा, यू आर डूइंग वेल, गुड फॉर एवरीवन, लेकिन आपने ग्राउंड फ्लोर पे एक कमर्शियल शॉप बना ली। अब वो डोमेस्टिक कनेक्शन कमर्शियल शॉप को भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओ, आपका मीटर पुराना हो गया, गोल गोल घूमने वाला, वो रुक ही गया एक तरह से, धीरे 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 बंद हो गया वो, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। There are 5 things which are there in unauthorized use of electricity. आपको घर में अपने डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए दिया है, लेकिन आपका कोई घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में आपने यूज कर लिया पावर को, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 5 चीजें अगर आपने समझ ली तो नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाओगे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन 126 में डिफाइंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वर्ड जो इंपॉर्टेंट है सर, वो है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 वर्ड्स मैंने बोला है, 3 वर्ड्स आपको समझना है बस। ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप सरकार बिजली विभाग को चूना लगाना चाहते थे, आप चाहते थे किसी तरह से बिजली मेरी फ्री हो जाए, तो आपने कनेक्शन कर लिया, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया, आपका इंटेंशन खराब था। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है आपका इंटेंशन खराब नहीं था, आप पे करना चाहते थे, बोलते हैं मेरे को तो पे करना है, सब अभी नई कनेक्शन लगा मैं लगा रहा हूं। तो सिर्फ डिफरेंस इंटेंशन का है। अब इसको एक एक करके अपन समझते हैं। डिस्कॉम, क्योंकि रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज रेवेन्यू फोकस, वो पनिशमेंट नहीं देना चाहता, रेवेन्यू फोकस है वो। तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो फर्स्ट अनऑथराइज्ड यूज, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन पेमेंट ऑफ बिल में क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन पेमेंट में क्या होता है, डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन पेमेंट में क्या होता है। ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और आपने बिजली का बिल नहीं जमा करा, आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो डिस्कॉम के पास पावर है सेक्शन 56, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आप बिल नहीं जमा करा, आपकी बिजली काट दी जाएगी, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा काटने के अलावा, क्योंकि सिक्योरिटी तो जमा है आपकी भाई। आपने जब बिजली कनेक्शन लिया तो आपने एक सिक्योरिटी दी कंपनी को कि भाई देखो, एक इतने हजार, जो भी रेगुलेटरी कमीशन ने डिसाइड करा कि 5,000 मैं सिक्योरिटी देता हूं, आप बिजली कनेक्शन लगा दीजिए। बिजली का कनेक्शन लगा, आप कहीं यूएसए कनाडा जहां अपने बेटे के पास, बच्चों के पास चले गए, आपने बिजली का बिल, आपने ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या होगा, उसने देखा बिजली का बिल पेड नहीं है तो उसने काट दी, उसके पास यही अथॉरिटी, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, सिक्योरिटी आपकी जमा है, आपका राइट है, आप आके फिर एप्लीकेशन दे दीजिए और कनेक्शन फिर से लगवा लीजिए, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इट इज प्रोटेक्टिंग द मनी ऑफ द डिस्कॉम, ठीक है। तो कोई सेकेंड इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 126। सेक्शन 126 ये बोलता है कि अगर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आप ये सारे काम, एग्रीकल्चर को कमर्शियल है, बाजू वाले से ले रहे हैं, मीटर आपका अपने आप बंद हो जाए, आपका इंटेंशन नहीं था चोरी का, आपको पता भी नहीं था, लेकिन ये देखा जाएगा तो आपके अगेंस्ट, टू नॉट बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, डिस्कॉम की भी गलती हो, लेकिन टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, ट्वाइस द टैरिफ रेट फॉर 1 ईयर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आपका जैसे मान लीजिए 5,000 का बिल आ रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा एक काम करो, मुझे लगता है कि 2 महीने से आपका अनऑथराइज यूज चल रहा है, तो 5,000 5,000 10,000 इंटू 10,000 20,000 का आप पेमेंट कर दो, काम खत्म। मैक्सिमम वो खींच के ले जा सकता है 1 साल तक, इसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है, लिमिटेशन है। 5,000 का बिल आ रहा है, किसी ने बोला कि मेरे पास यहाँ नोटिस आ गया, उससे पूछ लो कितने का बिल था लास्ट बिल, तो वो बोलेगा 5,000 का था, उससे पूछ लो नोटिस कितने का आ गया, 126 का। वो अगर 5,000 इंटू 12 इंटू 2 से ज्यादा है, बोलो इलीगली है, उससे कम है तो उसकी अलाउड है, ट्वाइस द टैरिफ रेट फॉर 1 ईयर मैक्सिमम। आप सिर्फ ये कर सकते हो, जब वो नोटिस भेजे तो आप ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि सर मेरी, लेट अस अज्यूम कि आपका घर है, आपने नीचे शॉप खोल ली, उसने आपको असेसमेंट ऑर्डर दे दिया 1 साल का मैक्सिमम वाला बना के दे दिया उसने, आप बोलोगे सर ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 2 महीने पहले ही खोली है मैंने, आप एक काम करो इसको 1 साल को रिड्यूस करके, गलती मैं मानता हूं 2 महीने का कर दो, खत्म कहानी। जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। थर्ड लेवल पे आपका जो है वो है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका इंटेंशन खराब है, इंटेंशन ठीक नहीं है आपका,
उस केस में चार्ज होते हैं थेफ्ट के चार्जेस, वो सेक्शन 135 आता है। सेक्शन 135 थेफ्ट के चार्जेस में दो चीजें प्रूव करनी पड़ती है। एक होता है मेंस रिया, मेंस रिया मींस मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन क्या था। और दूसरा प्रूफ करना पड़ता है डिस्कॉम को एक्टस रिया, उसने कुछ काम किया उसके लिए, मतलब उसने कुंडी लगाई, वायर लगाया, कुछ मीटर को चेंज हुआ, मैग्नेट लगाया, मशीन लगाई, जो भी करना है। दोनों चीजें जब प्रूफ हो जाती है वो बोल जाएगा थेफ्ट केसेस। अब 135 सेक्शन 135 में थेफ्ट के केसेस तो लगा दिए, पर प्रॉब्लम ये हुई, डिस्कॉम को बड़ी प्रॉब्लम थी इससे। डिस्कॉम ने बोला कि मेरा बिजली का लॉस हुआ है, मैंने अपने कंज्यूमर के अगेंस्ट थेफ्ट के चार्जेस लगे हैं, थेफ्ट के चार्जेस के बाद मैंने उसको प्रूफ भी कर दिया गिल्टी है, लेकिन जो फाइन है वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में जा रहा है, वो तो फाइन है। तो डिस्कॉम को क्या मिला? डिस्कॉम ने मेहनत, सर आप देखिए सिचुएशन समझिए आप, डिस्कॉम ने अपने एक तो कंज्यूमर को लूज कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, लीगल फीस इतनी दे दी, भाई वकीलों की फीस, और कंटिन्यूअसली चलती रही, 2-3-4 साल लगे उन्होंने फिर उसको गिल्टी प्रूव कर दिया। जब फाइन देने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने रख लिया अपने पास, फाइन है ना वो तो ये ऑब्जेक्शन उठाया डिस्कॉम्स ने आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ओके। तो जो सेकेंड अमेंडमेंट आया 2007 में, 2007 के सेकेंड अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट करा गया सेक्शन 154 सेक्शन 5 में, कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं दे विल आल्सो डिटरमाइन सिविल लाइबिलिटी व्हिच हैज टू बी पेड टू द डिस्कॉम। सो अगर किसी को गिल्टी आप करते हो तो फाइन तो होता है कॉम्पोनेंट जो कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट में जाएगा, लेकिन सिविल लाइबिलिटी जो है वो भी पे करनी है। तो टू सम इट अप, ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली, ऑनेस्ट, आप इसको ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो तीनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि असेसमेंट क्या होता है और फिर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सर होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन सर, थोड़ा लंबा लंबा आंसर रहता है मेरा, so that there is Beautifully, clarity। but जी answered beautifully. Now coming to part 7, section 61 to 66, tariff determination. And that is a very debatable topic so far India is concerned. What your view on that? इंडिया में तीन तरह से टैरिफ डिटरमाइन होता है सर, देयर आर 3 ways ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ। एक होता है देयर आर 2 प्राइवेट पार्टीज, आपको बिजली चाहिए, मैं बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं, हम दोनों ने आपस में बीच में डिस्कस करा, डिस्कस करने नेगोशिएट करने के बाद हम अराइव कर गए टैरिफ पे। दिस इज कॉल्ड टैरिफ बाय एग्रीमेंट। Okay. सेक्शन 49 ऑफ द सेक्शन 49 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अलाउज टैरिफ बाय एग्रीमेंट, परफेक्टली अलाउड है। दो लोग, अगर दो प्राइवेट पार्टीज हैं, एक कंपनी बोल रही है मुझे बिजली चाहिए, एक बोल रहा है मैं बिजली दे दूंगा, टैरिफ बाय एग्रीमेंट, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि आपने बोला कि बड़ा आपका प्रोजेक्ट है और आप चाहते हो कि कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टैरिफ डिटरमाइन करे। उस केस में जो जनरेटिंग कंपनी है वो अपना सारा बही खाता लेकर के जाती है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को। उस इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में वो अपना पूरा एक्सपेंसेस बताती है, वो पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या होगा, आपकी इंप्लॉइज की कॉस्ट क्या होगी, ऑल हेडिंग्स, और बोलती है कि आप प्लीज मेरा टैरिफ बढ़ा दीजिए, डिटरमाइन कर दीजिए। उसको बोलते हैं टैरिफ बाय डिटरमिनेशन, और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। विद इन द स्टेट है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और अगर इंटर स्टेट मैटर है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसको बोलते हैं टैरिफ बाय डिटरमिनेशन, इट इज अंडर सेक्शन 61। Great. तीसरा होता है कि भाई मार्केट शुड लेजे फेयर, तो सप्लाई एंड डिमांड शुड डिटरमाइन कि क्या टैरिफ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो टैरिफ बाय डिटरमिनेशन है ये टेम्पररी प्रोसेस है, हम चाहते हैं सप्लाई एंड डिमांड से चले। तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट इस सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस बनाएगी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बिडिंग प्रोसेस होगी उसकी गाइडलाइंस बनाएगी, उस गाइडलाइन को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब फॉलो करेंगे, नॉट प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पार्टीज की ऑप्शन, अगर प्राइवेट पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगे तो वो फॉलो करेंगे। उसमें क्या होता है, नाउ द मार्केट अराइव्स एट अ टैरिफ, बिडिंग प्रोसेस होता है,
रिवर्स ऑक्शन होता है, पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइंस अलग अलग है, थर्मल के अलग गाइडलाइंस है, सोलर के अलग गाइडलाइंस है, हाइड्रो के अलग गाइडलाइंस, डिपेंडिंग ऑन किससे एनर्जी ले रहे हैं। एंड देन यू अराइव एट अ टैरिफ। जब वो टैरिफ अराइव होता है तो आप क्या करते हो, आप जाते हो रेगुलेटरी कमीशन के पास, बोलते हो कि भाई ये सर टैरिफ, द यू नो the market has determined this tariff, so what the regulatory commission says, I will adopt the tariff, उसको बोलते हैं tariff by adoption. Oh, That is under section 162. So there are three methods of tariff determination in India. First is tariff by agreement, जो प्राइवेट पार्टीज करती हैं, क्योंकि जनरली बहुत सारे पीएसयूज हैं तो वो इस मैकेनिज्म पे जा नहीं सकती है, ठीक है। तो दूसरा, जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, पता नहीं होता कितना इन्वेस्टमेंट लगना है, वहां पे टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन होता है अंडर सेक्शन 161। एंड थर्ड, जो मार्केट ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होता है प्रोसेस, वो बोलते हैं टैरिफ बाय अडॉप्शन, सेक्शन 162। ये तीन मेथड्स हैं टैरिफ के। सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ टैरिफ इज डिटरमाइंड इन इंडिया सर। जी I would like to move forward and part 9, 10, and 11 जी sir. talk about CA, Regulatory Commission, APTEL. Kindly throw some small overview of all these things. We want to understand what the role of all these three. सर ये आपने थ्री गॉर्जस डैम सुना होगा। CA, Regulatory Commission, and APTEL. हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ थ्री गॉर्जस डैम है ना चाइना में, Hmm. वो 7-8 साल में बन के तैयार हो गया, बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट था। हमारा सुबनसिरी प्रोजेक्ट 20 साल में बन नहीं पाया, अब जाके बनेगा। यही चैलेंज 2003 के पहले था। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स थे और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत डिलेड हो रहे थे, मतलब 10, उनका टाइम था 5 साल, वो 10 साल 20 साल। तो हमने सोचा कि रीजन क्या है, ये क्यों भाई डिले हो रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस वाज डिसीजन मेकिंग। पहले क्या होता था, हाई कोर्ट में पिटीशन, कोई भी रिट पिटीशन फाइल हो गई, और हाई कोर्ट के जजेस दे आर एक्सीलेंट लॉयर्स बट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर। सो व्हाट हैपेंड, क्योंकि कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप बोलते हो कि मैं समझूंगा अच्छे से फिर डिसीजन दूंगा, तो वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और डिले, मतलब 5 साल 10 साल स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट का और वो चल रहा है 5 साल तक 10 साल तक। बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर द पावर सेक्टर, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी एक्चुअली। किसी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, सबका लॉस है, लॉस 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 है ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाते हैं, Oh, जो इन सारी इंडिया की जो पावर की डिस्प्यूट है रिजॉल्व करेगा। इसीलिए अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई। सो यू डोंट हैव टू गो टू हाई कोर्ट फॉर पावर सेक्टर डिस्प्यूट्स, यू गो टू अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, oh, स्ट्रेट। great. तो नंबर 1 एप्टेल का ये रूल है। लेकिन एक और चीज हुई, सो 1948 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाई गई थी। एंड अगर कोई मदर एंड गुरु है पावर सेक्टर का, तो मैं बोलूंगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। जो भी आप पावर सेक्टर देख रहे हो इंडिया का, उसकी गुरु और मां, जैसा आप समझना चाहते हो, जिस तरह से आप सोचना चाहते हो, वो इंडिया के पावर सेक्टर का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। लेकिन जब 2003 का एक्ट बन रहा था तो ये डिस्कस हुआ कि रेगुलेटर, जो लॉ बनाने का काम है हम रेगुलेटर्स को दे रहे हैं, पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का क्या काम है, उसको डिसबैंड कर दिया जाए, नॉट रिक्वायर्ड। एक तरह से लॉजिक था ये। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो बचा हुआ था, और वो इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि पावर सेक्टर के स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा। स्टैंडर्ड्स आर बियॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर बियॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज फुल्ली एप्लीकेबल टू बोथ। Oh, पावर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म होते हैं। सो पावर स्टैंडर्ड अगर बनाया सीईए ने, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, और कोई भी एंटिटी प्राइवेट बाय एग्रीमेंट है, नेगोशिएशन है, डिटर्मिनेशन है, वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। great. इसीलिए स्टैंडर्ड रेगुलेटर ऑफ इंडिया सीईए को बनाया गया, इसीलिए इट इज हैज बीन रिटेन्ड। Oh, उसको एनफोर्स करने की उसके पास पावर नहीं है। अगर एनफोर्स करना है तो आपको सीईआरसी जाना पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स उसको बनाएगा पूरे के पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म। आपको कितना बुरा लगेगा कि त्रिपुरा में कोई और फ्रीक्वेंसी कोई और है और गुजरात में कोई और फ्रीक्वेंसी है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज वन नेशन, सो दैट स्टैंडर्ड इज शुड बी यूनिफॉर्म। ऑल राइट, सो ये हो गया। Hmm. तो एंड सीईआरसी, तो एप्टेल का मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया, सीईए का मैंने बैकग्राउंड बता दिया। सीईआरसी इज बेसिकली फॉर इंटर स्टेट इश्यूज।
ओ, तो इंटर स्टेट, एक तो नंबर वन, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी ऑटोनॉमी चाहिए थी अपने पावर प्लांट का। वो चाहते थे कि सेंट्रल बॉडी शुड बी डिटरमाइन, ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में लोकेटेड है उस स्टेट की रेगुलेटरी कमीशन बना रही है। तो उन्होंने तीन चार चीजें बनाई सीईआरसी की। एक तो नंबर वन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल पीएसयूज है तो उसका टैरिफ डिटर्मिनेशन, उसका लाइसेंसिंग सीईआरसी करेगी। नंबर टू, अगर कोई इंटर स्टेट मैटर है तो स्टेट्स में डिस्प्यूट ना हो जाए, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है, इंटर स्टेट ट्रेडिंग है, उसके लिए भी लाइसेंसिंग और टैरिफ डिटर्मिनेशन सीईआरसी करेगी। तो ये तीनों का बहुत ब्रॉड पैटर्न में रूल्स है सर। सो होप इट इज यूजफुल टू द yes, our yes. subscribers and Yes, delegates. yes, जी very, सर। very useful. And in part 3, we talk about generation of electricity. And in section 9, we talk about captive generation in respect. I would like to know about the captive generation, especially in respect to solar power generation, because everybody is generating. How to define that captive power with respect to rooftop solar or any सर big. एक तो ना मार्केट सी कैप्टिव पावर में ना, जो सेक्शन 9 की डेफिनेशन है वो रूफ टॉप से कंपेयर नहीं करनी चाहिए हमको, Okay. क्योंकि मार्केट्स अलग अलग है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट, वन इज रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, वन इज होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। और रिटेल और होलसेल का जो डिस्टिंक्शन है वो 1 मेगावाट का है। Oh, इट इज नॉट अ परफेक्ट डिस्टिंक्शन बट दिस इज डिस्टिंक्शन। अगर कोई बंदा 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सेल या परचेज करता है वो होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में वर्क कर रहा है। कोई 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 10 किलोवाट, 500 किलोवाट की मार्केट में सेल परचेज कर रहा है तो वो रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में वर्क कर रहा है। कैप्टिव पावर और ग्रुप कैप्टिव पावर में अभी रिटेल में नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बनाना है। एंड द ओपन एक्सेस सिस्टम इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है, इट इज प्रोग्रेसिव, अभी कंप्लीटली नहीं मिला है ओपन एक्सेस। जब भी हम कैप्टिव पावर और ग्रुप कैप्टिव की बात करते हैं तो समझिए 1 मेगावाट प्लस की बात कर रहे हैं। oh, 1 मेगावाट प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यस, तो आपको अगर कोई ऐसा बोले कि मेरे को पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है तो उसको मत बोलना किलोवाट मार्केट में जाओ, आप इंडिया में नहीं बेच सकते। आप सोच रहे हो कि आप 200 किलोवाट का प्लांट लगा करके असम में बेचोगे, प्लीज द मार्केट इज डिफरेंट। आप अपनी डिस्कॉम के अंदर जो भी करना कर सकते हो रिक्वेस्ट करके, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, नेट बिलिंग और पीयर टू पीयर, वो सब आप वर्चुअल नेट मीटरिंग, ये सब कहानी कर लो, गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको वाकई बेचनी है तो आप 1 मेगावाट प्लस का पावर प्लांट लगाओ, तो वो होलसेल। अब उसमें क्या है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया एंड उनका एक प्लांट लगाया गया, जिस जो प्लांट था छत्तीसगढ़ में कोरबा में, फॉर प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। लेकिन वो एल्यूमिनियम, क्वालिटी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि भाई सीपीएसयू बना के दे दिया, वर्ल्ड क्लास आपको फैक्ट्री बना के दे दी, तो आप एल्यूमिनियम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? वो बोलते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज नॉट एबल टू गिव अस पावर, क्योंकि oh, उस समय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा उनसे कि हम क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने बोला हमें आप अलाउ कर दो हमारा पावर प्लांट लगाने के लिए, हम क्वालिटी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे। सो सबसे पहले बड़ा, ऐसा नहीं कैप्टिव पावर प्लांट पहले नहीं थे, पहले भी कैप्टिव पावर प्लांट थे, लेकिन एक मेजर स्केल पे जो परमिशन और अप्रूवल्स दी गई कैप्टिव पावर प्लांट की वो वहां से शुरू हुई oh. कि भाई आप लगा लो 270 मेगावाट्स, कुछ 3 फेजेस में उन्होंने कैप्टिव पावर लगाया, दे प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड क्लास एल्यूमिनियम एक्चुअली देयर आफ्टर। ऑलराइट, एंड यही चीज बाकी इंडस्ट्री ने भी रिक्वेस्ट करी कि अगर आप नहीं दे पा रहे हो हमें पावर, अलाउ अस टू आल्सो सेट अप आवर कैप्टिव पावर प्लांट। अब इसमें क्या बेनिफिट्स, धीरे धीरे सरकार ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम जनता को ज्यादा बिजली दे सकते हैं और जो इंडस्ट्री है वो अपनी खुद बिजली बना ले। भाई उस समय पावर की कमी थी ना सर, आज की सिचुएशन नहीं थी उस समय। तो फिर इंडस्ट्री ने बोला एक काम करो, हमें कुछ कुछ बेनिफिट दो। तो बहुत सारे बेनिफिट कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को देने लगी सरकार। वो सारे बेनिफिट्स आर्टिकुलेट करे गए हैं, लिखे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। Oh, सो 5 बेनिफिट्स लिखे गए हैं। नंबर 1, राइट टू ओपन एक्सेस। oh, मतलब अगर आप कैप्टिव पावर प्लांट लगा रहे हो अपने यूज के लिए और कहीं भी लगा रहे हो पूरे इंडिया में, आपका आपका इंडस्ट्री फरीदाबाद में है लेकिन आपका कैप्टिव पावर प्लांट है राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं, सोलर प्लांट, आप वहां से राइट है आपका ओपन एक्सेस का। लेकिन 1 मेगावाट प्लस होलसेल मार्केट में, रिटेल में राइट नहीं है आपका, सिर्फ होलसेल मार्केट में आपका राइट है।
वही ओपन एक्सेस है, रिटेल में अभी ओपन एक्सेस नहीं आया है फुल्ली। ऑलराइट, सो फर्स्ट है। सेकेंड इज नो ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ट्रांसमिशन में कोई नहीं लगा सकता, ना स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है ना कोई और गवर्नमेंट लगा सकती है। थर्ड, नो डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी नहीं लगेगा आप में। फोर्थ, नो सप्लाई लाइसेंस। तो मतलब आपकी कॉलोनी है और आप अपने इंडस्ट्री को तो सप्लाई कर ही रहे हो, कैप्टिव पावर है, कोई सप्लाई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है, आप सप्लाई करो। नो ट्रांसमिशन लाइसेंस, एक नया नोटिफिकेशन कल आया है बाकी पावर प्लांट्स के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट के लिए कोई ट्रांसमिशन लाइसेंस लेना नहीं चाहिए आपको। 5 किलोमीटर दूर है आपका कैप्टिव पावर प्लांट, आप ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके। नो एडिशनल सरचार्ज, तो एडिशनल सरचार्ज भी माफ। तो ये 6 बेनिफिट जो धीरे 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 1991, 92, 90 दिए थे, वो सब आर्टिकुलेट कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। तो hope this is useful to our solar people who are setting up captive power plants. Sir, what is the point? जनरेशन तो डी लाइसेंस है, वो भी अलग चीज है। Sir, what is जी the point of connection for this point? Suppose I am generating 2 megawatt at a one location. I want Right. to use that thing in Delhi, and that will be transmitted through central electricity, central utility, transmission utility. Then it come to DTL, Delhi transmission utility. Then through this distribution company, that will come to my place. We have to cross all these राइट things to reach to my place. So इसमें अगर suppose there is राइट, some हाँ congestion in the line, then what to do? Where to go? सर, ये तो आप ज्यादा बेटर आंसर करोगे कि कैसे है। आपको होलसेल मार्केट में आपका राइट टू ओपन एक्सेस है, Okay. ठीक है। आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वो ले सकते हो। अब कंजेशन के लिए क्या है सर, मेरे ख्याल से आप या और कोई डेलीगेट है जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो मे बी दे कैन आल्सो गाइड अस। Okay. जी जी। Coming to next part, licensing part 4. Who can get it? What are the conditions to get license and who will grant that license? लाइसेंस, ओके सर। एक तो रेगुलेटरी इश्यूज क्या होते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जी। एक होता है लाइसेंस, रेगुलेटर का काम अगर है ना, एक लाइसेंस होता है सर। नंबर 2 होता है टैरिफ डिटर्मिनेशन। जी। थर्ड होता है अपील फ्रॉम डिसीजंस ऑफ सेमी रेगुलेटर्स। अगर Right. आप एसटीयू से परेशान है तो अपील वहां पे जाएगी रेगुलेटर के पास। अगर आप ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर से परेशान है तो वहां जाएगी, स्टैंडर्ड रेगुलेटर से इश्यू वहां जाओगे। ये 3 रेगुलेटरी फंक्शंस। लाइसेंस में भी क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर है, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पावर्स इक्वल हैं, कम ज्यादा नहीं है सर। फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे पावर्स एसईआरसी सीईआरसी के इक्वल पावर्स है, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। Okay. ठीक है, और डिफरेंस फंक्शन में क्या है, 2-3 चीजें सीईआरसी के पास है। नंबर 1, अगर सेंट्रल पीएसयू है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, तो लाइसेंसिंग, टैरिफ डिटर्मिनेशन और अपील अगेंस्ट सेमी रेगुलेटर्स विल गो टू सीईआरसी, नंबर 1। Okay. Okay. नंबर 2, अगर इंटरस्टेट है तो सीईआरसी के पास जाएगी, बाकी सारे मैटर में एसईआरसी के पास जाएगी। Even intrastate matters also. इंट्रास्टेट अगर सीपीएसयू का है तो सीईआरसी के पास जाएगी, Okay. Good point. ओनली फॉर सीपीएसयू। Yeah. बाकी इंटरस्टेट अगर स्टेट की भी है कंपनी या प्राइवेट कंपनी है तो वो सीईआरसी के पास जाएगी। बाकी सारे मैटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाएंगे। सो इसका एग्जांपल ये है, अगर स्टार्ट करें जनरेशन से, जनरेशन इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी उसकी। तो अब आते हैं हम ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में अगर विद इन द स्टेट, अगर कोई भी बोलता है आपसे कि आप लोग सब एक्सपर्ट हो पावर सेक्टर में, मुझे ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, मैं किससे लाइसेंस लूं, क्योंकि आप लोगों ने, सर राज सिंह निरंजन जी ने बोला है कि उसमें लाइसेंस लेना कंपलसरी है, इट इज लाइसेंस्ड एक्टिविटी। तो आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टर से ये क्वेश्चन पूछो कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहते हो।
अगर वो बोलता है मैं जयपुर से जोधपुर तक ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहता हूं, तो आप उसको बोलो प्लीज गो टू राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर वो बोलता है मैं जबलपुर से भोपाल तक ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहता हूं, तो उसको बोलो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास है। अगर वो कानपुर से लखनऊ तक लगाना चाहता है तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लेकिन उसने जैसे ही बोला कि मैं एक स्टेट क्रॉस ओवर करना चाहता हूं, उसने बोला मैं जोधपुर से लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहता हूं, बोलता नो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, गो टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी। One जी more सर question. बोलिए। One more question. Suppose राइट सर। I plan to establish one industry in Rajasthan, for example, it's an राइट। example, हम्म। and I go to Rajasthan electricity board for getting connection, and they deny कि नहीं है हमारे पास, we don't have that much of power that I need. In that case, can I start my own generator, install my own generator to meet my requirement at my site, or I have सर to take permission? जो मैं समझ रहा हूं, आप इंडस्ट्री राजस्थान में लगा रहे हैं, आपको जो पावर है वो अपने पावर प्लांट से खरीदना चाहते हैं। हाँ. आपका राइट है, जनरेटिंग स्टेशन के लिए आपके पास किसी के पास जाना नहीं चाहिए। नंबर वन, आप बिहाइंड द मीटर कर रहे हो तो कहानी खत्म है। आपका आपका प्लांट है, जनरेटिंग प्लांट, आपकी इंडस्ट्री है, आप अपना पावर दो। लेकिन जैसे ही आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है, then there is a issue, then you have to seek permissions। But what I feel, to जी। get some जी। safety clearances, I have to approach some government. Don't you think so? राइट। Where should I go in that legally? Where should I go in that case? कहाँ जाऊँगा? स्टेज वन सर, स्टेज वन में आप अगर कोई अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना है आपको, या सेमी रेगुलेटर से लेना है, तो उसमें अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेमी रेगुलेटर सीटीयू, एसटीयू या लोड डिस्पैच सेंटर या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसमें कोई ऑब्जेक्शन करती है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, for example, then what you go, you file a application, appeal to Rajasthan Electricity Regulatory Commission। Let us assume Rajasthan Electricity Regulatory Commission ने भी ये डिसीजन दिया। अगर आप सेटिस्फाइड हो, गुड फॉर यू, गो अहेड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली। अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने अगर डिसीजन दिया, अगर आप सेटिस्फाइड हो, गुड फॉर यू। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई बात नहीं, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में, अलाउड है। और Sir, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, तो हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट कर लो। sir, who will check the specification of instrument, quality of instrument being used in my plant for generation? उसका कौन चेक करेगा? कंट्रोल तो होना चाहिए, there should be some control. मैंने सर अपना सेफ्टी सर सेफ्टी के लिए सिर्फ कंट्रोल दिया गया है। हाँ. अगर ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ की सेफ्टी की बात है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है। अगर ग्रिड की सेफ्टी की बात है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। दोनों अलग अलग चीज है सर। Okay, that means I have to approach electrical inspectorate for safety of human being and animals, and Yes, there is something related to system, ग्रिड सेफ्टी। grid safety, I have to approach CRC in that case. दोनों इंक्वायरी करती हैं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंक्वायरी करता है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करती है। एक्सीडेंट, आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है एक्सीडेंट क्या है। एक्सीडेंट में अगर आप देखते हो कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, एनिमल लाइफ को डेंजर है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। अगर आप देखते हो उसी एक्सीडेंट में ग्रिड की सेफ्टी डेंजर है, ग्रिड से सीईए। Okay, great. सो ऑल राइट, Okay, coming for होप the आंसर जी सर। yes. जी सर बोलिए। It's a very common question because I am in the state transmission utility, and जी we usually talk about the scenario. Can the state transmission utility be privatized? If yes, in what condition? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, क्या हाई कोर्ट को आप प्राइवेटाइज कर सकते हो? या चलो मैं बोलता हूँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आंसर कर देंगे, सुरेंद्र जी और भाटी जी और अशोक जी, मोहम्मद जी, सब लोग सुन रहे हैं। क्या आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को प्राइवेटाइज कर सकते हो या रेगुलेटर को प्राइवेटाइज कर सकते हो? यस और नो बोलिए भाई, यस और नो। वाई यस, वाई का मतलब यस और एन का मतलब नो। मुझे कोई भी चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। सो देयर आर सो मेनी पीपल। No. ओके वंडरफुल, सुरेंद्र जी सेइंग नो। No. ओके सुशील जी भी सेइंग नो, भाटी जी इज सेइंग नो। सर सबके यूनिफॉर्म नो आंसर है। No. ठीक है, प्रमोद जी इज आल्सो सेइंग नो। ओके बिल्कुल। आप रेगुलेट, जब आप हाई कोर्ट को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हो तो रेगुलेटर को भी प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हो। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी आर रेगुलेटर्स, दे आर ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग रेगुलेटर्स।
ओके। इंडिया में जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जैसे कि स्टेट हाईवे अथॉरिटी है, जो पूरे इंडिया के हाईवेज को प्लान करते हैं, सिमिलरली सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी का काम है कि पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में कैसे हाईवे मतलब ट्रांसमिशन लाइन किस तरह से बने, उसको प्लान करें। अगर कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को आपको लाइसेंस देना है, तो बिना एसटीयू की एनओसी के लाइसेंस नहीं मिल सकता। अगर आपको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो सब जब आप एप्लीकेशन डालोगे लाइसेंस के लिए, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन आपको मार्क करनी पड़ेगी सीटीयू को। बिना सीटीयू के एनओसी के वो लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि ये फूल हार्डी होगा हमारे देश के लिए कि जहां पे एक ट्रांसमिशन लाइन बिछी है, वहां पे 2 3 4 आप बिछा रहे हो। जहां पे अब जगह है, जहां पे नहीं है ट्रांसमिशन लाइन, वहां पे टैक्स पेयर का मनी हमें स्पेंड करना है। सो टू द जो प्लानिंग इसकी है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, वो सीटीयू एंड एसटीयू का काम था। और ये इशू आया पीजीसीआईएल के साथ। सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेचुरली बिकॉज इट हैड कॉम्पिटेंट मैन पावर, अब बिकॉज इट हैड कॉम्पिटेंट मैन पावर, वो एक जननी है इनकी। उसने एक माँ ने एक बच्चे को पैदा करा कि एक काम करते हैं, हम ही एक थोड़ा सा एक्सपर्ट्स को लेकर के, जो क्योंकि उस समय सेमी रेगुलेटर था नहीं, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग कौन करेगा, तो उन्होंने बोला एक हम थोड़ा सा डिपार्टमेंट बना करके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्लानिंग कर लेते। तो आई सैल्यूट टू देम। ओके, बट रिसेंटली एक चीज हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब जब बिडिंग प्रोसेस पे जाना है, ठीक है, टेंडर बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग में पीजीसीआईएल इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज का ये कहना है कि सर ये तो सेमी रेगुलेटर, आपने मुझे रेगुलेटर के सामने खड़ा कर दिया, एनओसी इसी को देनी है। तो भाई, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, और सीटीयू के पास और भी पावर्स है, मतलब इट इज नोडल एजेंसी फॉर ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ग्रांट ट्रांसमिशन लाइसेंस ही कोई नहीं देता है, नोडल एजेंसी एज अ सीटीयू देता है आपको कनेक्टिविटी, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर जो भी ट्रांसमिशन के चार्जेस पूरे अक्रॉस इंडिया एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया उन्होंने कि सब ट्रांसमिशन चार्जेस एक जगह इकट्ठे होंगे, जो सीटीयू करेगा, एंड देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन। तो उसके लिए भी नोडल एजेंसी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा कि भाई ये सेमी रेगुलेटर है, आप उस रेगुलेटरी फंक्शन को अलग करिए। इसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, डिसइन्वेस्टमेंट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शुरू हुआ कि भाई वो शेयर मार्केट में आपने डिसइन्वेस्टमेंट करा। आप जो रेगुलेटरी फंक्शन को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, प्राइवेटाइज नहीं पॉसिबल है उसका। तो इसलिए इन सारे रीजंस की वजह से ये डिसाइड करा गया कि सीटीयू को अलग कर दिया जाए पीजीसीआईएल से। इसीलिए एक नोटिफिकेशन 2021 में निकला जिसका नाम था डिविजन एंड डीमर्जर ऑफ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्कीम 2021। सो अंडर सेक्शन 38 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनको दो पार्ट में डीमर्ज करा गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड डीम्ड लाइसेंसी, एंड दूसरी कंपनी बनाएगी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 ऑनवर्ड्स, जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। वो प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है, पर अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो या तो रेगुलेटरी कमीशन ज्वाइन कर ले, या पोस्टोको वो लोड ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ले, या फिर सीटीयू ज्वाइन कर ले। आपकी सरकारी नौकरी जिंदगी भर चलेगी। बाकी सब में डेंजर है, जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी और उसको लगेगा कि भाई इन पीपल के इंटरेस्ट में ये है प्राइवेटाइजेशन, तो वो हो जाएगा। That So hope I have answered the question, sir. that means STU can be privatized. CTU can't. No, no. STU can also not be privatized. STU is also semi-regulator, sir. Okay. See, जब भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांसको का, कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी कि अपने स्टेट का ट्रांसको का डिसइन्वेस्टमेंट करे, उस समय या तो एसटीयू के फंक्शन उसको अपने पावर डिपार्टमेंट में लेने पड़ेंगे, और उसको एक नई कंपनी स्टेट गवर्नमेंट कंपनी बना के उसके पास डालनी पड़ेगी। दैट इज द लॉजिकल वे टू डू इट, सर। Got it. Good answer. Mind blowing. Sir, the participant want to know about what are the distribution companies and their roles. What are the major roles of distribution company as per the act? सर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एक ही मेजर रूल है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, सेक्शन 42, ड्यूटी टू सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट। Okay. किसी ने भी अगर एक कनेक्शन मांगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, तो एज अ राइट विद इन 1 मंथ 30 days
यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू दैट पर्सन। और अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी भी रीजन से, देन you have to give it in writing to the person and to the regulatory commission. All right, so मेरे हिसाब से अगर कोई बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क्या रोल है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है टू प्रोवाइड कनेक्शन विद इन 30 days। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। कई बार उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, POLR। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को तो ही विल स्टेप इन। इसीलिए उसको इतना एडिशनल सरचार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, स्टैंड बाय चार्जेस, पैरेलल ऑपरेटिंग चार्ज, ये सब इसीलिए फंडिंग कर रही गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज लिबरल टुवर्ड्स द डिस्कॉम। Great. All right. Now moving ahead with my favorite topic, section sir. 161 under part 17, accident and inquiries. Please throw some light on that. सेक्शन 161 बोलता है दो चीजें अगर हो, एक्सीडेंट हो या नियर एक्सीडेंट हो। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, नियर एक्सीडेंट। मतलब ये हो रहा है कि आप बच गए, भगवान ने बचा लिया, ठीक है कि नहीं? ऐसा भी होता है ना, वो नियर एक्सीडेंट को भी डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो एक्सीडेंट या नियर एक्सीडेंट अगर कुछ भी हो, मतलब एक्चुअली हार्म नहीं हो पर वो हो सकता था, बिल्डिंग तो गिरी है पर अनफॉर्चुनेटली कोई कहां खड़ा नहीं था वहां पे बीच में, बस खड़ा होता तो बेचारा कुछ ना कुछ हो जाता उस केस में। प्लस ये तो एक्सीडेंट या नियर एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट और नियर एक्सीडेंट से दो चीजें हुई, या तो ह्यूमन और एनिमल की लाइफ चली गई या उनको इंजरी हो गई। अगर ये दो चीजें होती हैं, देन यू आर ड्यूटी बाउंड टू गिव अ नोटिस ऑफ ऑकरेंस। उस नोटिस ऑफ ऑकरेंस आपको देना है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नाउ विल एक्ट लाइक अ मैजिस्ट्रेट। भाई कोई अननेचुरल डेथ होती है तो क्या होता है, SDM आता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। वो सेंट्रल CRPC में इंक्वायरी करता है कि भाई क्या है, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है वो मैजिस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। ही विल हैव पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, किसी को भी बुला सकता है, किसी कोई भी डॉक्यूमेंट समन कर सकता है, उसका राइट है। अगर कोई आता बंदा या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है एक्चुअली। और उस इंक्वायरी में उसको दो चीजें देखनी है। नंबर 1, कॉज ऑफ एक्सीडेंट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, उसको देखना है कि कंप्लायंस फ्रॉम रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस का हुआ है कि नहीं। ये दो चीजें देख करके उसको बनाना है प्रोसेस। लेकिन इसमें एक कमी थी। इस प्रोसीजर में जो कमी थी उसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हमें एग्जांपल मिलेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ओके। तो एक केस हुआ था बहुत पहले, 2004-5 का केस है, सत्यव्रत नारायण सिंह वर्सेस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BSEB। तो एक लेडी अपने बच्चे को 1 ईयर के चाइल्ड को लेकर के गई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसका हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रिक्यूशन से मर गया था। तो जब वो बिहार पटना में क्या थोड़ी कई फ्लडिंग आ जाती कई बार, एंड जब व्हेन द पर्सन स्टेप्ड आउट फॉर वर्क, उसका पैर फंस गया वायर में एंड ही डाइड। थोड़ा पानी भरा भी हुआ था। तो द वाइफ केम टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सेड कि भाई राइट टू लाइफ तो मेरी छिन गई सर, राइट। मेरा जो हस्बैंड था वो होल ओनली अर्निंग मेंबर था, आई हैव अ चाइल्ड ऑफ 1 ईयर टू सपोर्ट एंड आई डोंट हैव हस्बैंड एंड ही डाइड ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेज दिया बिहार स्टेट, उस समय बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, अब तो चेंज हो गया है। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह कहना था कि दिस इज नेचुरल कैलामिटी, एक्ट ऑफ गॉड, वायर ब्रोक डाउन इन अ स्टॉर्म, तो हमारी गलती नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का यह कहना था कि भाई पावर सेक्टर के मैटर में, इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो प्रिंसिपल बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में। बिकॉज इट इज इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं एज अ बिजनेस, इसलिए आपकी लायबिलिटी है एंड ड्यूटी है। तो इसलिए आप इंटरिम कॉम्पनसेशन 2-3 लाख जो भी है वो पे करिए, बाकी सिविल कोर्ट में वो जाकर के लंबा कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, जो 5-10 साल बाद जब मिलेगा तब वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। सो कभी भी अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रिक्यूशन की मैटर हो तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जा सकते हैं, उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल जाएगा।
यही यही दोहराया गया दिल्ली विद्युत बोर्ड का जो केस था, जहां पे उपहार सिनेमा केस में 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन इसने दिया था, अपने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। अब उसका केस था तो मुझे पता नहीं कि उसमें क्या हुआ है, पर ये वाला कॉम्पनसेशन अवेलेबल था। और अब क्या है, अब रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि कोई डायरेक्शन आई है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द डायरेक्शन, बट अगर किसी ने भी डायरेक्शन देखा तो आप प्लीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट की है कि हाई कोर्ट की है, किसकी है, जहां पे उन्होंने डायरेक्शन दिया है रेगुलेटरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 161 में हमने देखा अमाउंट नहीं लिखा है कॉम्पनसेशन का, उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेट, उन्होंने इंक्वायरी कर ली, यस सर। ठीक है, खत्म कहानी। लेकिन विक्टिम का क्या होगा या एनिमल का क्या हुआ पता नहीं है। उसके लिए किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, किसी ने दिया, आप लोग सबको पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आप रेगुलेशंस बना दीजिए। तो 2-3 रेगुलेटर्स ने बनाए हैं रेगुलेशन, लेकिन मेरे पास है त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का रेगुलेशन है मेरे पास। उसका नाम है त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स रेगुलेशन 2023। वो क्लियरली प्रोवाइड करता है अगर डेथ हुई है तो कितना कॉम्पनसेशन है, एनिमल की डेथ हुई है तो कितना कॉम्पनसेशन है, इंजरी हुई है तो कितना कॉम्पनसेशन है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों चीजों को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना इस तरह से पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अपनी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने के बाद मैं मानूंगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को सेमी सेमी रेगुलेटर टाइप का कुछ, ठीक है ना, और मैं बोलूंगा वो अपनी रिपोर्ट रेगुलेटरी कमीशन को दे, और रेगुलेटरी कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ, या तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी कर ली और हमारे पास ये रेगुलेशंस है, हम कंपनसेशन देते हैं। उसमें अगर कोई डिफरेंस है देन रेगुलेटरी कमीशन रिजॉल्व्स इट। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम शुड बी देयर। मेरे को किसी ने बताया था कि दिल्ली में पॉलिसी बनी हुई है पहले, आई हैव नॉट सीन द पॉलिसी। किसी के पास पॉलिसी है तो वो भेज दीजिएगा, आई वुड बी हैप्पी टू रीड सर। Moving जी ahead, सर। last जी सर। question from my side. There is one right of consumer rules 2020. राइट Can you tell us something about that rules? सर, एक बहुत सुंदर सी चीज है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, कंज्यूमर्स को तो वाइड पावर्स है। मतलब ये कहा जाता है लीगल फ्रेटर्निटी में, ये कहा जाता है कि यू कैन नॉट चूज योर जजेस। नहीं, आपका जो जुरिस्डिक्शन है, आप अगर लखनऊ में रहते तो लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जा सकते हो, आप भोपाल तो जा नहीं सकते। आप यू कैन नॉट चूज योर, यू कैन नॉट डिसाइड कि किस जज के पास जाना है, जिसका जुरिस्डिक्शन है उस जज के पास जाना है। इलेक्ट्रिसिटी मैटर में कंज्यूमर कैन चूज हिज जजेस। ओके। मतलब आपके पास एक ऑप्शन तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन का ऑप्शन है कि आप अपने जो ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है इंटरनल डिस्कॉम का, उसके पास जा सकते हो। उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील फाइल कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास। तो एक मैकेनिज्म ये है। सेकेंड मैकेनिज्म, कंज्यूमर कोर्ट्स आर अलाउड। आप यहां नहीं, आपको लगता है कंज्यूमर कोर्ट में आपको फास्ट डिसीजन मिलेगा, गो टू कंज्यूमर कमीशन। अब नाम उसका, पहले उसका कंज्यूमर फोरम था, अब वो कंज्यूमर कमीशन बन गया 2019 के एक्ट में। तो आप कंज्यूमर कमीशन चले जाओ अपनी एप्लीकेशन लेके। चलो ठीक है, आप उससे भी नहीं, आप सोचते हो कंज्यूमर कमीशन में तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट, इतना लंबा चक्कर कौन काटेगा। तो आप परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी लोक अदालत भी डायरेक्टली जा सकते हो, अलाउड है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में। उसमें क्या है, एक ही कोर्ट डिसाइड कर देता है, मतलब वो कंसेंट डिसीजन होता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि डिस्कॉम का एक ऑफिसर बैठेगा, आप बैठोगे, आप दोनों डिसाइड करोगे नेगोशिएट करके, वो डिसीजन जो होगा कंसेंट डिसीजन, नो अपील। Yes, yes. I have attended one local audit. I have हाँ, attended. तो ये 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी एक जो ग्रीवेंस, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म था और उसकी अपील इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। चैलेंजेस ये आ रहे थे कि भाई आपने कमिश्नरेट लेवल पे या स्टेट के हेडक्वार्टर्स, दिल्ली तो खैर कंबाइंड है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं आप उत्तर प्रदेश का समझिए, लखनऊ में आपने कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बना दिया, वहीं पे आपने ओम्बड्समैन बना दिया। अब जो बंदा झांसी का रहने वाला है वो बेचारा कैसे एक्सेस करे। चलो आपने, चलो एक काम करा, कमिश्नरेट में बना दिया सारे, तो झांसी में भी बन गया, मेरठ में भी बन गया। लेकिन जो अलीगढ़ में रह रहा है या कोई जो नॉन कमिश्नरेट एरिया में रह रहा है, वो बेचारा, उसका बिजली का बिल तो 500 का इशू है उसका। अब 500 के इशू के लिए वो लखनऊ जाएगा, झांसी जाएगा, बोलेगा 500 रुपए तो मेरे उसी में लग जाते हैं, मतलब आने जाने में लग जाएंगे। तो इसमें एक रूल्स बनाए गए, रूल्स का है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। उसमें एक चीज प्रोवाइड करी
कि आप सब डिवीजन, डिवीजन, सर्कल, जोन लेवल पे भी ये कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बना दीजिए। वाओ। ठीक है। और अपील जो है, वो अपील आप चाहो तो एक एक अपील कंपनी लेवल पे कर दो, फिर कंपनी लेवल की अपील जाने दो ओम्बड्समैन के पास। वाओ। ओम्बड्समैन के पास फाइनल, नो अपील प्लीज, इतनी ज्यादा अपील नहीं चाहिए हम लोग। ठीक है। तो ये है। और उसमें फिर ये भी डिफाइन बहुत सारी चीजें कर दी कि कंज्यूमर के ये राइट्स हो जाएंगे, और अगर आपको ये राइट्स नहीं मिले तो सर्टेन कॉम्पनसेशन शुड बी पेड टू देम आल्सो। सो वेरी वेरी ब्रीफली, इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मे बी एक सेशन आप इसी का कर लीजिए सर, मजा आएगा। So next session आपके साथ there will be a series of session with you, sir. I am not going to spare you at all. You will be. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। अब time है. Now the time is to ask participant to ask directly. Kindly raise your ठीक hand सर, one ठीक by है। one, and I will unmute and you can ask your question directly with Raj Singh Ranjan, sir. Kindly raise your hand. Surinder ji. Ramdhani ji, unmute Surinder ji first. Namaskar, sir. Welcome. Surinder sir, kindly unmute. अच्छा, कोई कोई हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रहा है अभी? हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। निरंजन साहब को भी नमस्कार। सर अच्छा एक्चुअली लगा मेरा आपको छोटा देख के, सर बोलिए। छोटा जी जी, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल, इसमें जो क्या बोलता है, मतलब एक्सीडेंट एक्सीडेंट में सपोज इलेक्ट्रिकल स्टाफ का कुछ मतलब फॉल्ट का कारण, और उसका कारण कुछ एक्सीडेंट हो गया स्टाफ स्टाफ को, तो उसमें क्या है प्रोविजन? द कंपेंसेशन विल बी गिवन, और व्हाट इज देयर इन द, सपोज कोई सर ऐसा है इलेक्ट्रिशियन और कोई जी, स्टाफ। इलेक्ट्रिक्यूशन केसेस में अगर इंजरी हुई या डेथ हुई, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, ओन फॉर एनिमल्स ऑल्सो, देन कॉम्पेंसेशन के लिए एलिजिबल है, नंबर वन। लेकिन कुछ स्टेट्स में क्लियरिटी है, कुछ स्टेट्स में क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। सो कुछ स्टेट तो इतने एक्सटेंट तक चले गए हैं, जैसे त्रिपुरा वाला स्टेट, वो क्लियर है बिल्कुल कि भैया यस। ये अगर ह्यूमन लाइफ है तो इतना कॉम्पनसेशन है, एनिमल लाइफ है तो इतना कॉम्पनसेशन है, ह्यूमन इंजरी है तो इतना कॉम्पनसेशन है, एनिमल इंजरी है तो उतना कॉम्पनसेशन है। तो वो तो एक तरह से आपका राइट ही है। और अगर वो आपको राइट नहीं मिल रहा तो आप त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि भाई मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, इतना भागने की जरूरत नहीं है, वो उतना तो मिले, उससे ज्यादा आपको चाहिए तो देन यू हैव टू डू अ सिविल केस, वो अलग कहानी पूरी लंबी चलेगी, उतना राइट है आपका। सिमिलरली मान लो कुछ स्टेट्स में नहीं है, तो आप उसकी जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहां पे भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बट बेटर ये होगा, जैसे त्रिपुरा ने बनाया और मुझे किसी ने बताया कि बिहार ने भी बनाया है, वैसे ही सारे स्टेट्स अगर अपना रेगुलेशंस बना लें, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो बहुत ही अच्छा होगा सर। नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, जो सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन स्टाफ वायलेशन ऑफ प्रोसीड्योर करके वो उसका इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? सर इसमें एक चीज है, हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं देख रहे हैं, चाहिए आपका स्टाफ ही मेंबर हो, उसने सेफ्टी रेगुलेशन ही नहीं फॉलो करी है, यस। ठीक है, मतलब उसका उसका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ना, यस उसने भी कंट्रीब्यूट करा है जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें। यस। इस इंटरिम कॉम्पनसेशन में नहीं देखा मेरे हिसाब से, मेरा सेंस गलत भी हो सकता है, आप लोग भी बताइएगा, इसमें ये नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का मैटर है, तो उसमें उतना कॉम्पनसेशन उसको मिलेगा। वो उसके बियॉन्ड जब आप सिविल केस होगा या कोई और होगा तो फिर उसके बाद वो एलिजिबल नहीं, देन यू कैन प्लीड की एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यही गलत कर रहा था ये, पर सर ज्यादा बता सकते हैं, जी बोलिए सर। सर माय क्वाइट डिफरेंट। देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी यूटिलिटी के अंदर, सबसे पहले उसके यूटिलिटी के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। ओके, अगर वो इंक्वायरी कमेटी फील करती है कि देयर वाज नो प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन हु डाइड, तब कंपनसेशन का उसका राइट बनता है। और मेरा मेरा ये मानना है। परफेक्ट। मेरा मेरा सर थोड़ा कोई डिफरेंट व्यू है, मुझे मेरा बस ये डिफरेंट व्यू है कि देखो जैसे लाइफ किसी की जाती है, चाहे उसका कॉन्ट्रीब्यूटरी हो चाहे नहीं हो, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये कहना है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है, उतना आप 2 लाख है जो भी है वो आप दे दो उसको,
ठीक है। बाकी अगर उसकी वाइफ प्लीड करती है, कुछ और केस होता है, इन दैट केस इन बिल्कुल। डिफेंस यू टेक अ रिपोर्ट ऑफ द कमिटी कि भाई एक काम है ये भाई इसका इसी की गलती थी, खुद की गलती थी इसकी। हाँ, तो वो वो different चीज थोड़ा है। सा, हाँ, पर वो सब ये सब क्लियर होना चाहिए सर सब जगह। जैसे हम्म, अभी हम Very well point. Now time to request Ashok sir, kindly unmute. And welcome sir, kindly unmute sir. Switch on your camera if possible. नमस्कार राजेश जी को, निरंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर वेबिनार के नमस्कार, लिए। आपका चेहरा दिख नहीं रहा है सर, आपने कैमरा नहीं ऑन करा है मेरा, शायद। कोई बात नहीं सर, बोलिए। जी हाँ, अब दिख रहा होगा सर। आप दिख रहा है। सर ये जानना चाह रहा था कि एसटीयू में जैसे जीएसएस होते हैं वो रिमोट लोकेशंस में होते हैं जनरली, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता नहीं है। तो जो कॉलोनीज रहती हैं उन कॉलोनीज में क्या एसटीयू अपने रेजिडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन दे सकता है? एसटीयू इज अ सेमी रेगुलेटर, उसको अलग करिए। जो मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं वो बोल रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइसेंसी का ग्रिड में सब स्टेशन है और उस ग्रिड में उनके स्टाफ भी रह रहे हैं। उन बिल्कुल स्टाफ को क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता हूँ? अशोक जी सही है ये? बिल्कुल यही बिल्कुल क्वेश्चन। सही है। ठीक है, तो दे सकते हैं। इट इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। आप अपने पावर से एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के पीछे ऑर्डर 5 जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बुक होती है ना, उसके पीछे जाके ऑर्डर्स पढ़िए। उन जी ऑर्डर्स में एक ऑर्डर है जो ये प्रोवाइड करता है, मैं कोशिश करता हूं देखने का, आपको बताता हूं ऑर्डर। जी ऑर्डर 5 या ऑर्डर 6 ये प्रोवाइड करता है, अगर कोई जनरेटिंग कंपनी है, जनरेटिंग कंपनी की एक एनएचपीसी की लेटेस्ट अज्यूम कॉलोनी है जहां पे वो हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं, तो वो एनएचपीसी इनको बिजली दे सकती है। और एनएचपीसी वो जो बिजली देगी अपने इंप्लॉयज को, उनसे कलेक्ट भी कर सकती है टैरिफ। वो ओके कंसेशन रेट पे भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि ओके। मार्केट में जाओगे तो 7-8 रुपए होगा। यहाँ पे इट इज हम्म। एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एनएचपीसी। सिमिलरली आपके केस में जैसे फॉर एग्जांपल आप कहाँ से, उड़ीसा से कहाँ पे हैं आप? राजस्थान। सो राजस्थान जो ट्रांसको है, राजस्थान की ट्रांसको जो अपने ग्रिड के सब स्टेशन में जो इंप्लॉइज या फैमिलीज रह रही है उनको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली दे सकती है, और उनके साथ ही एक एग्रीमेंट कर सकती है मीटर लगा करके कि भाई हम आपको इतने रुपए, बिकॉज यू आर आवर एम्प्लॉय आई विल टेक, या और फ्री ऑफ चार्ज भी दे सकती है। इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन राजस्थान ट्रांसको। एक्चुअली इट इज, बिल्कुल ये लिखा है ऑर्डर में सर, एक्सेप्शन दिया गया उसका है। अकाउंटिंग फिर ऑडिट में आएगा, उसमें अकाउंटिंग ऑडिट कितना आपने दिया, कितना कलेक्ट किया, वो सब। सर नॉन टैरिफ इनकम में आ जाएगा सर, नॉन टैरिफ इनकम। आ एंड रहा हूँ। जी प्लीज। Basically, ओके as a state utility, when you submit your report to regulatory commission, तो उसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि how did you compensate that component, वो रहेगा, उसका पार्ट बनेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। दूसरी दूसरी बात ये समझ पाया मैं कि सर ईएचवी नेटवर्क किसी को लाइन ड्रॉ करनी है किसी स्टेट में, तो उसके लिए उसको स्टेट रेगुलेटर के पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ये ठीक बिल्कुल है? ठीक है। सर और डॉक्टर एक ये राजेश जो आप बेटर बता बताएंगे रहे इसको, थे, ठीक। निरंजन साहब बता रहे थे कि आज कोई नया रेगुलेशन, कुछ नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में कल आया क्या? है, कल आया है? तो सर कल उसका आया है। एक सेशन करेंगे हम जल्दी, एक बहुत बड़ा सेशन सीरीज चलती रहेगी सर के साथ। तो फॉर ओके, paucity of time I have to take another question also. थैंक ये यू सर सर। अशोक जी, आप ना थैंक यू। ये मिल गया है मुझे, द इलेक्ट्रिसिटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी 7th ऑर्डर 2005 का है। आप इसमें ओके, लिखा है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हाउसिंग कॉलोनी ऑफ सब स्टेशन। यस सो सर। हाउसिंग कॉलोनी ऑफ सब स्टेशन में, इसमें ये है, मैं बताता हूं आपको, आपका आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी 7th ऑर्डर, 4th है ये, एक सेकंड। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हाउसिंग कॉलोनी ऑफ सबस्टेशन, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अ ट्रांसमिशन लाइसेंसी, एसटीयू और सीटीयू अलग कर दीजिए, वो नहीं है यहाँ पे, to the housing colony or the operating staff located in the premises of that substation will be deemed to be the integral part of the activity of transmitting electricity, and such licensee shall not be required to obtain license under this act for the such supply of electricity.
सर इसका सबसे Okay. बड़ा एग्जांपल आप पावर ग्रिड की किसी भी सबस्टेशन में जाएंगे, उनके उसी कॉलोनी में ही अपनी कॉलोनी होती है और वो वहीं से ही स्टेप डाउन करके पावर देते हैं। इसी का बिलिंग रहता है। हाँ अभी हमारे नहीं है ये सब। हाँ, कर सकते हैं वो। बेसिकली आपके पास टेशरी वाइंडिंग से स्टेप डाउन करके वोल्टेज को 11 केवी लाके 11 केवी बाय 440 का वोल्टेज लेके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉलोनी के अंदर। ओके, थैंक यू। सुशील सर, काइंडली अनम्यूट। It's your turn, and this is the last question of the session. Then we will take another question in the next session. Otherwise, you can send all my queries, and I will try to get reply from Ranjan sir. Sushil sir, kindly unmute. Last question of the session before we Hello. end. Please. Hello. हाँ जी सर, सर, Good evening, sir. बोलिए सर, नमस्कार जी सर। Actually, sir, I have 2 to 3 questions. आप One पूछिए। question is, in case of loss of property due to any electrical fault, who has the authority to inquire this matter as per the Electricity Act? Electrical Inspectorate. For the loss of property, which section says means I did not get any specific sections. Loss of property because of fire, electrocution, or any other cases. Electrocutions only. Electrocution, Loss electrical of property. inspectorate. I think. What? Ranjan sir, what do you What, say? sir? Electrical Inspectorate. What do you say, sir? Ranjan sir? Actually, लोकल मैटर है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ही होगा सर। हाँ actually स्पेसिफिक एक बार देख लेंगे जी। हाँ। जी, Actually, जी, हाँ जी। in 161 it has only written for loss of life like that, but nowhere it has written loss of property. For in कहीं पे भी अगर कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ इंक्वायरी के लिए आता है, तो कौन इंटरेस्टेड है करने के लिए, वो एक्चुअली डाउट है एक। और एक डाउट है, वैलिड डाउट, वो ग्रे, आप जो बहुत सुशील जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इसको इस एंगल से एग्जामिन मैंने भी नहीं करा है प्रॉपर्टी के लॉस के हिसाब से, तो आई विल आल्सो एग्जामिन इट, और आपको कुछ मिले तो आप भी उसको शेयर करना कि आपको sure I am searching for this answer since last 4-5 years actually. Good question. Next. That's a wonderful question. Another question is that can we mix section 126 with 135? Can a discom company mix the sections 126 with 135? Because what happened, while they are assessing a consumer, they are writing in their provisional assessment that assessment under sections 126 read with sections 135. They are writing like this. Can we mix this both code actually? What I think, sections 126 and 127 both make itself is a code actually, complete code. So can they mix 135 with 126? सर मेरा सेंस ये है, जब ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था तब ये ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 लेवल्स बनाए गए थे। मेरा सेंस ये है कि डिस्कॉम को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है। Right. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जब 2003 में एक्ट बना, तो उन्होंने बोला मैं अगर थेफ्ट चार्जेस प्रेस करूंगा तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, इट इज यूजलेस फॉर डिस्कॉम एक्चुअली। Yes, this is the only reason. हाँ, तो क्या करा सर डॉक्टर राजेश जी, गुजरात ने, तेलंगाना ने और बहुत सारे स्टेट्स ने, नॉट वन, उन्होंने बोला हम दोनों चार्जेस प्रेस करेंगे, हम 126 का भी चार्ज प्रेस करेंगे और 135 का भी। तो क्या होता है, 126 का असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट भेज देता है और 135 के लिए पुलिस में कंप्लेंट चली जाती। तो बहुत सारे स्टेट्स ये दोनों कर रहे हैं, और जब तक वो दोनों पैसे नहीं दे देता, कंपाउंडिंग का पैसा अलग और 126 का पैसा अलग, तब तक he is not free, he does not get connection। तो सुशील जी, मतलब it has to be decided by the court कि अलग अलग करना है कि नहीं करना है। पर एक चीज और भी है कि there are wide powers with discoms। so जो कुछ डिसऑनेस्ट होता है, उसको कुछ मैटर्स को आप थेफ्ट में भी कंसिडर कर सकते हो। सॉरी, अनऑथराइज यूज के ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी आप ले सकते हो। ले सकते हैं। तो वो Actually, sir, स्ट्रैटेजी है रेवेन्यू की। Actually, sir, I would like to add another point here. जी, Because in one case, judgment of Supreme Court in Sitaraman case, actually, Right. I will share that order with you. In that जी, order, Supreme Court, they have mentioned that sections 126 and 127, it is making itself is a self defined codes. One
and 135 is another code. We can mix with both the code. Actually, they have given one judgment like that. I can share with you. I will share, definitely share with you, sir. Please. जी जी बोलिए बोलिए. Another question is that, sir, can you differentiate sections? Actually, differentiate section 68 and 164. Actually, how to differentiate these two? Actually, वो तो ROW के सेक्शन है ना. yes, yes. Actually, what happened when 64 और 168 में तो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. वो पावर्स की बात करता है, ये अप्रूवल की बात करता है. बिल्कुल. which actually for erecting a line more having voltage more than 33 kV and above, do the requisitioner required a approval from the government department नहीं, or इसको from the government? आप इसको ना दूसरे वे में समझो. चलो, फर्स्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी, पावर लिंक्स ट्रांसमिशन, जो ताला भूटान से लेके दिल्ली एनसीआर के एरिया तक आना था, इवैक्यूएट करना था पावर 3 स्टेट से. सो टाटा पावर ने फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन थी, गवर्नमेंट वांटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो टाटा पावर ने बोला मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आई शुड बी मेजॉरिटी शेयर होल्डर. सो सबसे पहले टाटा पावर को मिल गया 51% एंड 49% मिल गया पीजीसीएल को, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को. ऐसे एक जॉइंट वेंचर बनाया गया टू इवैक्यूएट पावर फ्रॉम ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू एनसीआर एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए. अब जब उन्होंने डीपीआर बनाना शुरू करी, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे तो बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड आ रही है, कभी फॉरेस्ट आ रहा है, कभी हाईवे आ रहा है, कभी आपकी रिवर्स आ रही है, कभी लेक्स आ रही है. भैया हमें एज अ प्राइवेट कंपनी हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दो. मुझे क्लियर नहीं है एज अ टाटा पावर कि मुझे 100 विलेज पंचायत से अप्रूवल लेनी है. आप समझ लो सुशील जी क्या बोल रहा हूं मैं. मेरे को 100 विलेज, भाई आप उनमें ट्रांसमिशन टावर बेसिस लगाओगे ना, तो क्या हर विलेज पंचायत से आप लोगे, या 3 स्टेट गवर्नमेंट है? भाई वेस्ट बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, तो क्या 3 स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है? तो टाटा पावर या प्राइवेटाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे सिंगल विंडो अप्रूवल दे दो, ये भाई कोई भी दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 68 इंक्लूड करा, सेक्शन 60 विच प्रोवाइड्स सिंगल विंडो अप्रूवल. सिंगल विंडो अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट लैंड पे आप जितने टावर बेसिस लगाना चाहते हो लगाओ. अगर इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट आपका ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन कानपुर से लखनऊ तक है, विद इन स्टेट है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ यूपी, रेगुलेटर के पास नहीं जाने की जरूरत है, लैंड गवर्नमेंट की है, तो आप सेक्शन 68 का अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ यूपी से लोगे. लेकिन अगर आपकी 2 से ज्यादा स्टेट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर से आप अप्रूवल ले लोगे. सेक्शन 68 का एक अप्रूवल से आप 4 स्टेट भी क्रॉस कर सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट लैंड है आप कर लो. तो आप अब चाहे उस सेक्शन 68 के अप्रूव, लेकिन अगर आपकी लाइन में आपने पूरी लाइन ही खरीद ली, लेट अस अज्यूम आपके पास हैं पैसे, आपने बोला कि जितने टावर बेसिस सर लगा रहे हैं वो हमने खरीद लिया है, तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं. आपकी एक 500 मीटर की लाइन है, आपने खरीद ही लिया है पूरा का पूरा, तो आपको गवर्नमेंट के पास नहीं जाने की जरूरत है. लेकिन अगर सरकारी लैंड आ रही है बीच में और उसमें टावर बेस लगाना है आपको, तो सेक्शन 68 का अप्रूवल चाहिए. लेकिन एक प्रॉब्लम आई टाटा पावर को. Okay. टाटा पावर को ये प्रॉब्लम आई, बीच में प्राइवेट लैंड भी तो है. प्राइवेट लैंड उन्होंने बोल रहे हैं कि भैया मैंने थोड़ी अप्रूवल दी है आपको सरकार ने दी है, तो गवर्नमेंट लैंड पे आप लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. भाई अगर पंचायत की लैंड है या फॉरेस्ट की लैंड है, तो आप अपना अप्रूवल दिखा दोगे, सेक्शन 68 का अप्रूवल है मेरे पास, लगाने तो टावर बेस लग जाएंगे, वो बोलेगा ठीक है लगा लो. लेकिन जैसे ही प्राइवेट लैंड, अब एग्रीकल्चर तो 48% इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड आनी है, उसके लिए वो नेक्स्ट सेक्शन 164 है. ये था कि पहले, अब क्वेश्चन ये था टाटा पावर के पास कि पहले क्या होता था, पहले भी तो ट्रांसमिशन लाइन लगी है प्राइवेट लैंड पे, तो पहले क्या, तो पता चला पहले ये होता था एमिनेंट डोमेन पावर, राजा की शक्तियां इस्तेमाल, क्योंकि गवर्नमेंट लगाती थी. सो गवर्नमेंट अपनी राजा की शक्तियां इस्तेमाल करके ईजमेंट राइट लेती है प्राइवेट लैंड में, पब्लिक गुड के लिए वो प्राइवेट लैंड में खेत में अपना टावर बेसिस लगा के आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है. लेकिन ये राजा की शक्तियां प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है. टाटा पावर प्राइवेट कंपनी है, उसके पास तो ये राजा की शक्तियां है नहीं. तो सरकार ने एक और सेक्शन इंक्लूड करा गया, वो सेक्शन जो आप बोल रहे हो सेक्शन 164. सेक्शन 164 ये बोलता है कि अगर आपको प्राइवेट लैंड भी एंटर करना है और टावर बेसिस लगाने हैं, तो आपको एक नेक्स्ट पावर्स डेलीगेट करवाने पड़ेंगे सरकार के.
जो सेक्शन 68 के पावर्स हैं वो एक व्हाइट पेपर पे डेलीगेट हो जाते हैं, गवर्नमेंट का सील लग के। लेकिन जो सेक्शन 168 के हैं उसमें गजट नोटिफिकेशन आपके फेवर में इशू होता है कि अब आप प्राइवेट लाइन पे भी घुस सकते हैं। नाउ यू हैव स्टेप्ड इनटू द शूज। अगर आपका जो लाइन है, डायग्राम जो भी है, उसमें अगर प्राइवेट लाइन नहीं आ रही है तो आप लो मत। लेकिन अगर प्राइवेट लाइन आ रही है, क्योंकि आपको रीरूटिंग करना पड़ेगा तो आपका एटीएनसी लॉसेस और कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का, तो आपको भी आप तो बोलोगे बेटर है कि मैं थोड़ा एफर्ट करके वही अप्रूवल ले लूं, गजट नोटिफिकेशन करवा लूं। गजट नोटिफिकेशन जिस दिन आपने करवा दिया तो आप भी सरकार होंगे। Great. आप अब प्राइवेट लाइन पे भी घुस के आप लगा सकते हो। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है ना सर? Yes, yes, clear. Yes, ठीक है, and Thank you. now time to wind up the session with thanks to Raj Singh Ranjan sir for sparing his valuable time. And this series will definitely continue. We will meet again to clarify more sections of Electricity Acts and other things related to law in the power sector. And with that, once again, happy Lodi. लख लख बधाइयां लोहड़ी दी सबनों। थैंक यू Same to you. सबको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और हमारा एक फ्री यूट्यूब चैनल है जहां पे ये छोटे सवाल जो जहां से आए हैं पिछले 15-20 साल तक, आई थैंक डीजीएफ डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन जो उन्होंने कंपाइल करके उस यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। उसका नाम है एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। सो आप एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन टाइप करेंगे तो वो यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यू कैन गो एंड विजिट एंड सी। अगर कोई आपके काम का वीडियो है, आपको लगता है अच्छा, तो यू कैन वॉच और शेयर इट विथ योर सीनियर्स, दे विल आल्सो बी थैंकफुल। सो थैंक यू सो मच से डॉक्टर राजेश जी। थैंक यू एवरीवन।